ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਣਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੇਫਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹੋਰ 10 ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਟਿੰਗ ਦੈਮ ਇਨ ਜੇਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਵੇ। ਤਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਚਕ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੌਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕੀ ਰੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਥਲ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸਰਟਨ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਫਰੀਡਮ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਕੋਰਸ ਵਿਦਇਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫੇਅਰਲੀ ਚੱਲਣਾ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ। ਅੱਜ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਗਨਸ ਵਰ ਬੀਇੰਗ ਫਾਇਰਡ ਫਰਮ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਸ ਪਲੈਨਡ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਦੇ ਵਰ ਆਸਕਡ ਟੂ ਸਰੈਂਡਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਰੈਂਡਰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਈ ਹੋਪ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ, DGP ਯਾਦਵ ਦੀ ਜੋ ਸਹੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਪਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ ਜੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ because it is between embassies of two countries or external affair ministries of two countries। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਟਸ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਯੂ ਨੋ ਵਿਚ ਆਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹਾਰਡ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏਗੀ, that will not have similar policies to what Trudeau is having। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਡਰਸ ਹੋਣ, NRIs ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਅਪ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਣ। ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ NRI ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਆਣਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ NRI ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ NRI ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅਰਲੀਅਰ ਆਲਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਜੋ UP 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਡਨਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖੋ, ਰਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ। lot of good things are happening and we can learn. We are in certain terms we are better infrastructure wise, income wise, ਪਰ certain problems common ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਈਓ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਇੱਕ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ, ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਡਿਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। that is very unfortunate। ਇੱਕ ਬੰਦਾ who is already ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਮੈਂਡਸ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮਰਸ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਆਫਕੋਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, and I think that will be the way forward. It should be given some time, ਤੇ let's see how it goes। सर, भारत के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं द्रौपदी मुर्मू जी। 25 तारीख को वो अपनी शपथ ग्रहण करेंगे और अपने कार्यभार को संभालेंगे। तो कई लोगों का कहना है कि इतिहास रचा गया है भारत में, एक ST कैटेगरी से किसी को आपने प्रेसिडेंट बनाया है। देखो ऑफ कोर्स किसी भी पर्सन का जिसकी पर्सनल लाइफ में उनके पास सर्टेन डिसएडवांटेजेस हों और उससे निकल के अपने देश की जो सबसे इम्पॉर्टेंट सीट है, बीइंग द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है जी। और डेफिनेटली ये इतिहास रचा गया है। इंडिया ने हमेशा ही ये एग्जाम्पल सेट किए हैं। इंडिया में हमेशा जो टॉप पोजीशंस पे, चाहे वो किसी भी मल्टीपल कम्युनिटी से लोग आए हैं जी, राइट, वो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हैं, वो किसी भी चाहे मेल हो फीमेल हो, हर जेंडर से हमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिले हैं। तो ये इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसका सक्सेस है, एंड वी शुड सेलिब्रेट इट। और अगेन मैं इसमें एक चीज़ और बात कहूँगा, ऑफ कोर्स ये एक सिंबल ऑफ सक्सेस है, लोगों में मोटिवेशन लेके आएगा, बट सिर्फ एक बंदे के प्रेसिडेंट बनने से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वहाँ पे अच्छा हो गया। उनकी ग्रोथ और सपोर्ट हमेशा चलती रहनी चाहिए। और अल्टीमेटली ऐसी टॉप पोजीशंस पे जो भी लोग पहुंचे, वो अपनी मेरिट पे पहुंचे। और द्रौपदी मुर्मू जी, शी हैज बीन एन अचीवर, शी वाज अ गवर्नर, शी डिड वेल ओवर देयर, तो उनका एक करियर रहा है एंड शी हैज डन वेल, और आज रीचिंग द हाईएस्ट ऑफिस सच एन ऑनर।
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस कम्युनिटी से हैं, जी। उनका जेंडर क्या है, राइट। वो हमारा जो बेस्ट कैंडिडेट हो, दैट पर्सन, मोस्ट डिजर्विंग पर्सन शुड लीड द कंट्री, शुड बी इन द बेस्ट ऑफिसेस ऑफ द कंट्री। ये हमारे देश की विजन होनी चाहिए। और इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे ओपोजिशन की कुछ पार्टीज इज ट्राइंग टू ऑलरेडी लेबल हर एज a rubber stamp, right? Look, we are in a prime ministerial democracy. जी। अब यशवंत सिन्हा जी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, एंड आई वाज सरप्राइज व्हेन ही सेड दैट कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन गया तो मैं सीए कानून लागू नहीं होने दूंगा। जी। I think he does not understand the democratic system of India, right? It is a lower house run democracy. It is a basically parliamentarian run democracy. अगर हाउस में बिल 2 बार पास हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट को उसको ओके करना, जी। right? So these are some of the things that collectively our politicians should understand. हर चीज को हम कंट्रोवर्सी में ना डाल दें। जी। Lot of things, especially election of president, should be the celebration of democracy, should be done with humility and with a certain level of grace. आज अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि हमारी लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर क्वेश्चनिंग एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। उससे ना सिर्फ वो देश की इमेज बाहर खराब कर रहे हैं, इंटरनली भी यूथ के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जो वैल्यू है, जो उन पे ट्रस्ट है, उसको अनहिंज कर रहे हैं। जब वो इस चीज को अनहिंज करेंगे, जब लोगों का अपने इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट्स हों, पार्लियामेंट हो, सीबीआई हो या आरबीआई हो, जब ऐसे इंस्टीट्यूशन से भरोसा उठना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से कंट्री डिस्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएगी। जी। ये सारी कंट्री उस भरोसे पे ही चलती है। वी नो कि आज अगर आरबीआई के गवर्नर ने लिखा है कि मैं आपको वचन देता हूं कि इसकी वैल्यू 100 रुपए है, तो आप मान के, इसीलिए हर कोई वो कागज का टुकड़ा आपसे ले रहा है। जी। कल को जब उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है तभी देश अनस्टेबल हो जाते हैं। मेरे को लगता है कि सम ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया आर प्लेइंग अ वेरी डेंजरस गेम एंड दे शुड स्टॉप डूइंग इट। हजारों करोड़ रुपए के खर्चे के साथ एक एक्सप्रेसवे बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के उन्होंने इनॉग्रेट किया और कुछ ही समय में वो टूट रहा है। और क्या हम ऐसे डेवलपमेंट कर पाएंगे? देखो, ये बड़ा सैड बात है कि आप बाकी ऑफ कोर्स इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि 15,000 करोड़ में बना जी एक एक्सप्रेसवे 5वें दिन बारिश की मार से टूट जाए। बचपन के दिन याद आ रहे हैं। तब तो ये चीज़ आम होती थी कि भाई सड़क बनी, बारिश पड़ी, सड़क गायब। जी। पर आज स्पेशली हम अपनी जो हाईवे नितिन गडकरी की जो मिनिस्ट्री है, इसको हम सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री मानते आ रहे हैं और ओपोजिशन ने भी इसकी सराहना की है। जी। उस मिनिस्ट्री में ये होना मेरे को बड़ा ही आश्चर्यजनक लग रहा है। आई फील वेरी सैड अबाउट इट, बट लेट इट बी सीन कि भाई क्या उसी पार्ट में प्रॉब्लम है या ओवरऑल क्वालिटी में प्रॉब्लम है। मेरे को ये लगता है कि इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल। ये भी छोटी मोटी चीज नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर उसके अंदर करप्शन निकल के आती है तो जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको आंसरेबल करने की जरूरत है। और क्वालिटी चेक जिन्होंने किए हैं, एनएचआई के भी चाहे ऑफिशियल हो, चाहे वो कंपनी हो जिसने उसको डेवलप किया है, उन सब की इंक्वायरी, और अगर कमी निकलती है उसके अंदर तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि ये सारी चीजें देश की इमेज खराब करती हैं, गवर्नमेंट की इमेज खराब करती हैं, लोगों का भरोसा खराब करती हैं। तो ये चीज के ऊपर डिटेल में इंक्वायरी होना बहुत जरूरी चीज है। सर, ईडी ने समन किया था सोनिया गांधी को, और कांग्रेस के जो वर्कर हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ईडी को सोनिया गांधी को अपने पास नहीं बुलाना चाहिए था, अगर क्वेश्चन करने थे तो सोनिया गांधी के पास जाना चाहिए था। तो बिल्कुल सही बोला उन्होंने। देखो, जब इतने बड़े बड़े एमपी राइट खुद सोनिया जी के पास जाते हैं और वो ये कहते हैं कि सोनिया जी बोलेंगी तो मैं झाड़ू भी मार दूंगा जी, तो फिर ईडी की क्या मजाल है, राइट। और हम ऐसे ही तो ये तो मेरे को बात बिल्कुल फेयर सी लग रही है कि सोनिया गांधी दी ग्रेट, राइट, जिनकी कंट्रीब्यूशन है हमारे हर फील्ड में, चाहे स्पेस रिसर्च हो, चाहे डिफेंस रिसर्च हो, चाहे एजुकेशन हो, राइट। किस किस देश में किस किस एरिया में उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया हमारे देश के लिए जी। और अगर उनकी सेवा में ईडी नहीं हाजिर होती है तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। ईडी के सामने नरेंद्र मोदी जी पेश हो जाए, अमित शाह जी पेश हो जाए, वो ठीक है ना, बट आप इस लेवल के लोगों को बुला रहे हो और उनकी इंटीग्रिटी पे शंका व्यक्त कर रहे हो सोनिया गांधी जी की, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं बनती। चलो, हैविंग सेड दैट, मतलब दिस इज द अनफॉर्चुनेट स्टेट।
आज हम क्या हम डेमोक्रेसी में है कि मोनार्की में है? जी क्या हमारे नेता अपने लीडर के लिए इस तरह की जब स्टेटमेंट्स देते हैं तो मेरे को लगता है कि वो अगेन वो लोगों में अपनी अपनी वैल्यू तो डाउन करते हैं, हमारे देश की भी वैल्यू डाउन कर देते हैं, और अपने लीडर की भी। अपने लीडर की तो वैल्यू डाउन करते ही हैं, जी ठीक है ना। बट ये इस तरह का कल्चर है, अगर कांग्रेस में इस तरह का कल्चर बना है तो ये उसी का रिजल्ट है। वहां पे हाई कमान वर्ड यूज होता है जी कि हाई कमान से, ये ऑफिशियल वर्ड है उनका, जी उनके यहाँ के स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो थे वो यही वर्ड की हाई कमान से मैसेज आएगा तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। जी। तो जब ये कल्चर ही यही है तो फिर इसी तरह की बातें होनी है। सर, चाइना में एक बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए टैंक्स लगाए गए और लोगों ने कहा कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। देखो जब लोग वर्ड ये यूज करते हैं हिस्ट्री, दे ऑल रिमेंबर दैट अनफॉर्चुनेट डे ऑफ तिनानमेन स्क्वायर, जहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने टैंक्स चढ़ा दिए थे और कई हजार लोग मारे गए थे। और उस दिन एक उम्मीद जो जगी थी कि चाइना में डेमोक्रेसी आई थी, उसी दिन उस उम्मीद को खत्म कर दिया गया था। आज बिकॉज ऑफ दोज पॉलिसीज, हमेशा जब भी डिक्टेटोरियल पॉलिसीज होती हैं उनके साथ रिस्क होते हैं। जैसे ही सेंट्रल लीडरशिप वीक होती है या थोड़ी सी भी करप्ट होती है, उससे पूरे के पूरे सिस्टम बिखर जाते हैं। आज उनकी पॉलिसीज की वजह से देखो, आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से चाइना जियोपॉलिटिकली ग्लोबली बड़ा अग्रेसिव हो रहा है। जी वो जियोपॉलिटिकली ग्लोबली इसलिए अग्रेसिव हो रहा है क्योंकि वो जो इनके इंटरनल फेरियर्स हैं उनको छुपाना चाह रहा है। वहां पे एक बहुत बड़ी ब्लैक होल है डेट की, जी राइट, जो अननेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जस्ट टू शो ग्रोथ, जिसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। जी तो आज चाइना हैज स्टार्टेड टू पे द प्राइस फॉर दैट। उनकी लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ, वो चाहे कोविड के थ्रू दिखाएं या जो मर्जी करें, इज बिन इन नेगेटिव। जी तो मेरे को लगता है कि और आप इमेजिन नहीं कर सकते कम्युनिस्ट पार्टी की मन मर्जियां, एंड वी शुड बी थैंकफुल दैट वी आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया। जो भी वहां पे डिपॉजिट्स थे, जो लोगों की सेविंग्स थी, यूनिलैटरली गवर्नमेंट ने और बैंकों ने घोषित कर दिया है कि ये इन्वेस्टमेंट है, अब तुम इसको वापस नहीं निकाल सकते। अब जो लोग उस पर रिलाय करते हैं उनके लिए नर्वसनेस है और आज टैंक्स की जरूरत पड़ गई है। और ये चीजें बहुत ज्यादा और खराब होने जा रही हैं। और ये एट द सेम टाइम इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी कंट्री को एज अ वायबल इन्वेस्टमेंट प्लेस दिखाएं, वो प्लेस दिखाएं जहां पे सिस्टम्स एंड लॉ एंड ऑर्डर हैं। अगेन जो हम पहले बात कर रहे थे, तो हमारे ओपोजिशन के पॉलिटिशियंस को भी ध्यान, कल को वो भी पावर में आ सकते हैं जी। तो देश को इतना बदनाम ना कर दें कि उनको अपनी सरकार चलानी मुश्किल हो जाए। आज कोलेक्टिवली सबको चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, इंडिया में इन्वेस्टर्स को वेलकम करना चाहिए। कितनी अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारी गवर्नमेंट तो जोर लगा रही है, क्या ओपोजिशन वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो अदर कंट्रीज को बोले प्लीज कम हेयर, वी विल प्रोवाइड यू द राइट एनवायरनमेंट। क्या आज की डेट में इलेक्शन जीतना इतना जरूरी हो गया कि करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड जहां पे बन सकते हैं? आप इमेजिन करो सिनेरियो कि आर गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन ऑल्सो कम टुगेदर एंड से इन्वेस्ट इन दिस कंट्री, वी हैव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव बेस्ट पॉलिसीज। इंटरनल पॉलिटिक्स आप अलग तरीके से लड़ो, सोचो कंट्री किस लेवल पे जाएगी। आई थिंक दिस इज द लेसन दैट शुड बी टेकन। सर, इसी एस्पेक्ट में अगर देखें तो वहाँ लोगों ने कहा कि अगर टैंक ऑपरेटर ही है वो ही अपने बैंक से पैसे ना निकलवा पाए तो टैंक का जो तोप का गोला दूसरी तरफ घूम जाएगा, और क्या, जो भी लोगों की तरफ है उस तरफ घूम जाएगा। देखो, दैट वाज अ जोक बट इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो। एंड आई होप कि देखो लोग जनरली आर पीपल आर नाइस, राइट। वो अपनी मेहनत करते हैं, आम आदमी दिन रात मेहनत करता है और कुछ सेविंग रखता है। उसके साथ वो चाहे चाइना का आदमी हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे किसी पाकिस्तान का भी हो, जब उनके साथ बुरा होता है वो जनरली वहाँ के लीडर्स और टॉप बिजनेसमैन हो, टॉप लीडर्स हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, उनकी करप्शन की वजह से होता है। दैट शुड नॉट हैपन एंड दे शुड गेट एक्सेस टू देयर सेविंग्स। सर, इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और अब हो सकता है कि इटली में भी घमासान हो पॉलिटिकल। देखो, उनको सुपर मारियो कहते थे एंड ही मेड लॉट ऑफ रिफॉर्म्स आफ्टर कोविड। उन्होंने इटली की रिकवरी में बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस की। बट अगेन कोलिशन, पॉलिटिशियंस आर एवरीवेयर द सेम, ठीक है, दे आर अपॉर्चुनिस्ट। और उनकी कोलिशन गवर्नमेंट टूट गई है और अब जो 2023 के बजट पे केयर टेकिंग गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट। पर जो फुल टाइम गवर्नमेंट होती है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, उनकी पॉलिसी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो इट विल स्लो डाउन देयर प्रोग्रेस। पर सबसे बड़ा इस वक्त जो रिस्क जो इटालियन पर्सपेक्टिव से आ रहा है कि वहां पे जो नियो फैसिस्ट रूट्स वाली गवर्नमेंट की सरकार लीड में है। व्हाट इट मींस इज बेसिकली अ फैसिस्ट माइंडसेट, a mindset where they look internally,
where they stop cooperating with others, where immigration policies are changed, which are not inclusive. तो ये एक फियर है जो इटालियन पॉलिटिक्स में आया हुआ, बट अल्टीमेटली इट इज़ द चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ इटली, विच एवर गवर्नमेंट कम्स, एंड दे शुड वर्क फॉर द बेनिफिट. और मेरे को ये लगता है यूरोपियन कंट्रीज को इस नेटो इन्फ्लुएंस से निकलना चाहिए जी. उनको थोड़ी सी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज लेनी चाहिए. सो दैट विल बी बेटर फॉर द एंटायर ग्लोब. शुक्रिया सर, इस तरह की ज़रूरी जानकारी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात सुनने के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद.